Welcome students in your physics class, and my today's topic is acceleration. Student, till now we have discussed about velocity. Now we'll discuss what is the change in velocity. This acceleration depends on change in velocity. If a body starts with velocity u and after some time the velocity becomes v, okay, and you take u is the initial velocity of that body and v is the final velocity, okay, and it is time, okay, taken for the change in velocity. Clear? So acceleration will be what? This acceleration will equals to change in velocity upon time. So students, what is the acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity or change in velocity with respect to time is called the acceleration. Okay. As we know the formula v minus u upon t, then we get the unit meter per second square or meter second inverse square. Student, acceleration having the both the thing actually, magnitude as well as direction, because it depends on velocity, and velocity having direction, velocity is a vector quantity, so acceleration will also be a vector quantity. So it is a vector quantity because it depends on velocity. आपने देखा ना acceleration जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, ओके, जो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करती है, क्लियर, और वेलोसिटी भी ड्राइव क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, okay, so its direction will be along the direction of velocity. Okay, now student, as in our second chapter we have learned about the dimension, how we can find out the dimension of a any physical quantity. Okay, so here whenever we study any physical quantity we will also write the dimensional formula. Clear? So here we studied this acceleration, so the dimension formula will be what? Lt minus 2. तो इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? Lt minus 2 होगा। क्लियर? ये आप पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, किस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन हैविंग टू नेचर। एक्सेलरेशन, आइदर एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो, ओके। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स आप बाइक राइड करते हैं तब, ओके, यू एक्सेलरेट योर बाइक, then increase of your bike, the velocity of your bike increases, okay, when you accelerate the bike. इस तरह से स्टूडेंट जब आपकी बाइक का स्पीड डिक्रीज होता है तब उस केस में क्या होता है, वो डीएक्सेलरेट होती है, यानी उसमें रिटार्डेशन होता है, ओके। और डिक्रीज कब होता है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक, द स्पीड ऑफ योर बाइक डिक्रीजेज, ओके, एंड दिस टाइप ऑफ डीएक्सेलरेशन इज नोन आल्सो नोन एज अ रिटार्डेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो जब स्पीड इंक्रीज होता है तो दोनों ही केसेस में एक्चुअली चेंज हो रहा है, आइदर स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो इन बोथ केसेस देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ओके, एंड व्हेनेवर देयर इज अ चेंज देन यू विल से देयर विल बी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। तो इफ द वेलोसिटी increases, if the speed increases, then acceleration will be positive. If speed decreases, then acceleration will be negative. Or this negative acceleration is also known as the retardation. Clear? So students, on behalf of this condition, actually the acceleration having two nature: positive acceleration and negative acceleration. So what is positive acceleration? When change in velocity is in increasing order, and what is negative acceleration? When change in velocity is in decreasing order. Okay, and it is also known as the retardation. ये याद रखिएगा, जब वेलोसिटी स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशंस क्या? देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट? व्हेनेवर द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन यू विल से द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मींस व्हाट इज स्टूडेंट? जब कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, और उस केस में आप देखते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी में, उसकी जो स्पीड में चेंज हो रहा है, ठीक है, इन ईच एंड एवरी टाइम, इन ईच एंड एवरी यू कैन से आर, यानी कि हर एक आर में उसका जो स्पीड में इक्वल चेंज हो रहा है, ठीक है, तब उस केस में आप क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर सपोज करिए अगर एक स्मॉल बॉडी आप लेते हैं एंड इट मूव्स, एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग, देन यू सी दैट in the first 1 second the change in body, the change in speed of the body is let's suppose 10 meter per second, ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज करिए अगर 1 सेकंड में उसमें चेंज हुआ 10 मीटर पर सेकंड का, और अनदर 1 सेकंड में चेंज हुआ 20 मीटर पर सेकंड का, अनदर 3rd सेकंड में उसमें जो चेंज होने के बाद में टोटल स्पीड हो जाता है उसका 30, ठीक है।
तो फर्स्ट 1 सेकंड में यानी कि 0 पे आपने लिया है 0, टाइम 0 था तो उसका स्पीड भी 0 था। 1 सेकंड के बाद में आपने देखा स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड, अगले ही सेकंड में उसका टोटल स्पीड 20 हो गया, और नेक्स्ट 3 सेकंड के बाद यानी टाइम टोटल 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड हो गया 30 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो इसका मीन्स क्या होगा एक्चुअली कि जो उस बॉडी का या उस पार्टिकल का जो स्पीड है एक्चुअली वो इंक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट में और इन ईच एंड एवरी 1 सेकेंड। तो when the speed of the body increases equally in each and every equal time actually, then you will say this will be the type of uniform acceleration. So what is uniform acceleration? When a change in velocity of a body, okay, increases in equal intervals of time, then you will say acceleration will be uniform. So students, what is uniform acceleration? When change in velocity is equal intervals of time, then this type of acceleration is uniform. इसका just opposite क्या होगा? Whenever there is a change in velocity unequal in equal intervals of time, then you will say non-uniform acceleration. ठीक है? यानी कि फर्स्ट 1 आवर में सपोज करिए बॉडी मूव कर रही है, फर्स्ट 1 आवर में उसमें चेंज हुआ 10 का और सेकंड 1 आवर में चेंज हुआ 20 का। ठीक है? हालांकि टोटल उसका स्पीड कितना हो गया 30 हो गया, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि चेंज कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। फर्स्ट 1 आवर में चेंज हुआ था 10 का, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड जो स्टार्टिंग में 0 थी और 1 घंटे बाद उसका स्पीड हो जाता है 10 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता है 1 आवर के बाद में। मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि 0 में 0 था, यानी कि स्टार्टिंग में जो टाइम 0 था उसका स्पीड भी 0 था, 1 आवर के बाद उसका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? आफ्टर 2 आवर तो इसका टोटल स्पीड हो गया सपोज करिए 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? स्टूडेंट्स, आप क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट 1 आवर में 0 से जब 1 आवर हो गया टाइम, ठीक है, तो स्पीड हो गया उसका 0 से 10, यानी कि 10 का चेंज हुआ। जब 1 आवर से 2 आवर हुआ, ठीक है, तो उसका चेंज कितना हुआ 10 से 30 हो गया, तो टोटल चेंज कितना हुआ 20 का चेंज हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ 20 का चेंज हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड 1 आवर लेते हैं, आफ्टर 3 आवर इसका जो स्पीड हो गया 35 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यहाँ स्पीड यहाँ चेंज कितना हुआ 5 का चेंज हुआ। तो फर्स्ट में कितना चेंज हुआ 10 और सेकंड में 20, थर्ड में 5 का चेंज हुआ। तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी सी एक्चुअली फ्रॉम दिस कंडीशन, वी सी दैट द चेंज इन स्पीड is unequal in equal intervals of time. So this type of motion is known as the non-uniform motion. स्टूडेंट, जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, स्टूडेंट, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है? क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर तभी होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्लियर? जैसे सपोज करिएगा एक बॉडी है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि उसका u और v दोनों सेम है, इसका इनिशियल और फाइनल एक ही है, चेंज नहीं हो रहा है। तब उस केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आप v माइनस यू से जब आप निकालेंगे फॉर्मूले में पुट करके, तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, v माइनस यू, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 है। ठीक है? तो स्टूडेंट, इस तरह से एक्सेलरेशन आपको 0 मिलता है। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होती है, ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तब एक्सेलरेशन 0 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके? तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा हूँ। यानी कि इन दोनों ही केसेस में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। यानी कि अगर चेंज इक्वली हो रहा है तब यूनिफॉर्म होगा, और चेंज अनइक्वल हो रहा है तब उस केस में नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपके कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी में चेंज होना है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन 0 होता है। क्लियर? और एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कब होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, उसके लिए व्हाट इज़ द कॉज एक्चुअली। तो कॉज हम पढ़ेंगे, आप उसमें नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे, जब लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे
तो वहाँ पर लॉज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पर आपको कॉज मालूम होगा। ये फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल दिस चेंज एक्चुअली। यानी कि जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, जब आप अपनी बाइक का एक्सीलरेटर को एक्सीलरेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने पर वो एक्सीलरेट हुआ और एक्सीलरेट होने पर उसके अंदर चेंज हुआ। ठीक है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको आगे ये चीज़ समझाएंगे नेक्स्ट अगले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हम लेते हैं। अच्छा, इसके बाद में एक और बचा है इसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे कि इंस्टेंटेनियस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, इंस्टेंटेनियस फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट एक्चुअली, यानी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एक्चुअली। यानी कि सपोज करिएगा अगर हम शॉर्ट इंटरवल dt लेते हैं, यहाँ पर ये dt क्या है, एक शॉर्ट टाइम है, स्मॉल टाइम है, और इस स्मॉल टाइम में हमने देखा जो चेंज हुआ वेलोसिटी में वो dv है, और dv क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये इतना चेंज हुआ किस में, वेलोसिटी में। ओके, तब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो सिंपल है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर, तो ये स्मॉल है और टाइम भी स्मॉल है, और फॉर दिस स्मॉल टाइम द चेंज भी स्मॉल है, तब उस केस में एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं। इंस्टेंटेनियस, मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बताया था, वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्पीड क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लिखते हैं dx ओवर dt। तो स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा फॉर इंस्टेंटेनियस। क्लियर, dx ओवर dt। यहाँ dx क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम dt। क्लियर, इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी मोशन ग्राफिकली। तो हाउ वी कैन ग्राफिकली रिप्रेजेंट एनी टाइप ऑफ मोशन। तो किसी भी, जितने आपने यहाँ पढ़ा, अभी इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी आपने मोशन में आपने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन आप स्टडी करते हैं। ठीक है, आप यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, बॉडी की रेस्ट स्टेट को आप डिस्कस करते हैं, बॉडी की कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है उसको आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं, आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, इसको आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ग्राफिकली इनको कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, या सपोज करिए आपको किसी भी टाइप मोशन, किसी भी टाइप की मोशन का आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी टाइप अगर हो सकता है, उसका आपको उसमें फाइंड करना होता है कि ये जो ग्राफ है एक्चुअली वो किस मोशन को शो करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको ग्राफ्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। क्लियर, तो जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड another one is velocity time graph. Actually student, this distance time graph gives us speed actually. By using distance time graph you can find out the speed of any body actually. Okay, इसी तरह से velocity time graph gives us distance. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अक्सर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इस पर पहले तो हम जो है डिस्कस करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्चुअली। तो स्टूडेंट वी हैव टेकन हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस हियर। द फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट एक चीज़ आपको समझ में आती है, जो बॉडी रेस्ट में होती है उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो एज इट इज़ एक पोजीशन पर बनी रहती है, उसको हम कहते हैं रेस्ट स्टेट। ओके, जैसे हमने यहाँ पर y एक्सिस पर हमने लिया है डिस्टेंस। ठीक है, और इसको आप ले सकते हैं मीटर में, और इस तरह से x एक्सिस पर आपने टाइम लिया है जिसको हमने सेकंड में लिया है। स्टूडेंट एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, अगर सपोज करिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 1 2 एंड 3, तो ये 3 मीटर हो गया। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 मीटर हो गया। इसी तरह से टाइम को भी आप ले सकते हैं, टाइम एक्सिस पर आप टाइम भी ले सकते हैं, 1 है और ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो इस तरह से आपने टाइम एक्सिस पर टाइम को भी ले लिया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्हाट यू सी हियर, यू सी फर्स्ट 1 सेकंड में आपने देखा
जो बॉडी का जो पोजीशन है वो 3 मीटर है, यानी कि बॉडी कहाँ रखी है, 3 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। क्लियर। इस तरह से सेकंड 2 सेकंड बाद आपने देखा, 2 सेकंड बाद आपने चेक किया, बॉडी एज इट इज है, उसी पोजीशन पर है। 3 सेकंड बाद भी वही है, 4 सेकंड बाद। तो स्टूडेंट्स क्या हम यहाँ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो टाइम है वो पास हो रहा है, लेकिन जो बॉडी का पोजीशन है वो एज इट इज है। ओके, बॉडी रिमेन ओके एट द सेम पोजीशन, ओके, बट द टाइम इज पासिंग हियर। तो this condition is known as the rest state. We already discuss about the rest state and motion state of a body. So rest state, when a body does not change its position with respect to time, with respect to surrounding, okay, with the passage of time, you can say. So this is a rest state. Okay, so whenever you take a straight line which is parallel to x-axis, okay, that will show the rest state of a body. तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जब एक straight line draw करते हैं which is parallel to x-axis, ओके, दिस लाइन विल शो द रेस्ट स्टेट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, बॉडी जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, तो इसका जो हर पॉइंट पर आप चेक करेंगे उसका जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर ही रहेगा, पोजीशन सेम है। इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने लिया है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है कि आपने अभी पढ़ा था इससे पहले कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इस तरह से आप इसको भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी स्केल ले सकते हैं। वाई एक्सिस पर आपने स्टूडेंट डिस्टेंस लिया है जो कि मीटर में है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया है, आप यहाँ ले सकते हैं, यहाँ भी इसको शो कर सकते हैं टाइम को, तो यहाँ आपने टाइम लिया है जो कि सेकंड में है। क्लियर। तो स्केल आप इस तरह से ले सकते हैं, ये आपने लिया, सपोज करिए 2 ले लिया आपने, यहाँ 4 ले लिया है, यहाँ पर आपने 6 ले लिया है। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आपने टाइम लिया है, ये 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया, ये आप 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो व्हाट यू सी स्टूडेंट, यू सी दिस बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस तरह से ये बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन दिस इज अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इट, 1 मिनट, okay, I am talking about this non-uniform motion when the speed is in increasing order. So student, what you see here, you see we have taken on y-axis we have taken the distance in meter, on x-axis we have taken the time in second. Okay, so what we see here, we see that in 4 second the distance covered is 5. first 4 second में distance कितना कवर किया, 5 किया, ठीक है, और second 4 के बाद 6 है, तो टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। तो ये इंटरवल कितना होगा, 2 सेकंड होगा, और इन 2 सेकंड this body covers 5 मीटर डिस्टेंस, ऑल्सो सेम डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद आप देख रहे हैं 6 7 के बीच में इंटरवल 1 का होगा, तो 1 सेकंड में बॉडी कितना कवर करती है, 1 सेकंड में भी 5 करती है। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव टेकन टाइम इज अनइक्वल बट डिस्टेंसेस आर इक्वल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा क्योंकि यहाँ पर टाइम कैसा है, टाइम अनइक्वल है, डिस्टेंसेस इक्वल है। तो व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in unequal intervals of time, this is also known as a non uniform motion. तो non uniform motion को आप दोनों तरह से explain कर सकते हैं, either you can say when a body covers equal distance in unequal intervals of time, or you also can say when a body covers equal distance in unequal intervals of time. Both are the same thing. Okay, so here this body covers equal distances in unequal intervals of time, because in first 4 second it covers 5 meter, in second 2 second it covers the same distance, in the last 1 second it covers the same distance 5. ओके, फर्स्ट 4 सेकंड में भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर, और 2 सेकंड में कितना कवर करती है, 5 मीटर, और 1 सेकंड में भी 5 डिस्टेंस कवर करती है। इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और ये इंक्रीजिंग स्पीड को दिखा रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड कैसा हो रहा है कि टाइम कम होता जा रहा है और डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। यानी कि पहले उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस 5 कवर की, उसके बाद उसने नेक्स्ट 2 सेकंड में वही सेम डिस्टेंस कवर करी है, तो उसका मतलब स्पीड उसका इंक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकंड में वो 5 डिस्टेंस ही कवर करती है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है एक्चुअली कि इसका स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और स्पीड अभी कांस्टेंट है, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है। इस तरह से हम आते हैं नेक्स्ट में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को शो करेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो ग्राफ होगा एक्चुअली, दिस ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, जब स्टूडेंट्स इस तरह का ग्राफ आपको गिवन हो कि ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा हो इस तरह से, ओके, तो दिस शोज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट फॉर द
फॉर द इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। उसके बाद में आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट द स्पीड इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट व्हाट यू सी हियर वी हैव टेकन द डिस्टेंसेस आर अनइक्वल एंड टाइम इज इक्वल हियर। तो फॉर फर्स्ट 2 सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड इज 4 एंड फॉर द सेकंड 2 सेकंड द डिस्टेंस इज 6 एंड फॉर द third 2 second the distance covered, okay, the total becomes 7. So what you see here, you will find in the first 2 second the distance is 4 and for the next 2 second actually the distance is what, 6 minus 4 2, okay। तो इस इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया और नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 minus 6 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या देख रहे हैं आप, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, टाइम सेम है, यानी कि फर्स्ट 2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 4 और नेक्स्ट 2 सेकंड में टाइम सेम है लेकिन उसका डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, 6 minus 4 यानी कि 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकंड में उसने 7 minus 6 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो स्टूडेंट्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर को शो कर रहा है, ठीक है, लेकिन मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा क्योंकि स्पीड कैसी है, वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल स्पीड है। सो दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Okay students, now we'll take the second case, velocity time graph. Velocity time graph, time remain on the x-axis but we take on y-axis. Now we'll take the velocity which will be in meter per second. तो y-axis पर हमने यहाँ velocity लिया है, मीटर पर सेकंड में टाइम x-axis पर हमने टाइम लिया है, सेकंड में लिया है, ठीक है। तो यहाँ भी डिफरेंट केसेस हमने लिए हैं, जैसे फर्स्ट केस में फॉर यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में तो उसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर किस तरह से शो करेंगे। तो देखिएगा हमने कैसे शो किया है यहाँ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और 5 10 15 इस तरह से हमने इसको स्केल ले लिया है और यहाँ पर 2 4 6 8 ये स्केल हमने वाई एक्सिस पर लिया है। तो स्टूडेंट ये देख रहे हैं हम कि 2 सेकंड में जो उसका स्पीड था, जीरो में जब स्टार्टिंग थी उसकी, स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी 15 था, 2 सेकंड बाद भी उसका स्पीड कितना रहता है, 15 रहता है, 4 सेकंड बाद भी उसका स्पीड 15 रहता है, 6 सेकंड बाद भी उसका स्पीड 15 रहता है, 8 सेकंड बाद भी उसका स्पीड 15 रहता है। स्टूडेंट अब ये बात क्लियर होगी आपके कि ये जो बॉडी है जिसका टाइम तो पास हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया सिंपली, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन को शो करती है ऑन वीटी ग्राफ, यानी वीटी ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। और यही केस अगर हम उसमें लेते हैं डीटी ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो रेस्ट स्टेट को शो करता है। समझ में आ रहा नहीं, बिल्कुल सेम ग्राफ होता है रेस्ट स्टेट का भी, लेकिन वो ग्राफ कौन सा होता है, डीटी ग्राफ होता है। वाई एक्सिस पर वहाँ हम डिस्टेंस लेते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया है और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को लिया, इसलिए this is not for the rest state actually, because here the velocity is also actually, so this is for the constant velocity, constant speed graph, okay. Now the second case is for uniform accelerated motion. This is not the uniform motion, this is a uniform accelerated motion, clear. So here it means what is the acceleration means, actually there is change also, change in velocity also, okay, clear. So student what we see here, we see the change in velocity is equal, first 1 सेकंड में चेंज कितना हुआ, 2 का हुआ, सेकंड 1 सेकंड में भी 2 का हुआ, थर्ड 1 सेकंड में भी 2 का हुआ, फोर्थ 1 में सेकंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो टाइम के साथ साथ जो है इक्वल टाइम में जो चेंज हो रहा है वो इक्वल हो रहा है, इसलिए एक ऐसा मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो चेंज वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड में हो रही है टाइम के साथ, इसलिए कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्लियर। इसके बाद में आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ भी 2 केस होंगे, एक तो होगा जब स्पीड जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, चेंज कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और दूसरा केस होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए भी बिल्कुल सेम, जैसे वहाँ आपने देखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए जो कर्व बनेगा वो बेंड्स करेगा किसकी तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए कब कर्व किधर बेंड करेगा, वाई एक्सिस की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। तो व्हेन द कर्व बेंड्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस देन दिस विल शो द case for the increasing order of the speed actually. When this curve bends towards x axis this will show the change in speed in decreasing order, clear. तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का केस आपको समझ में आना चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए कर्व वाई एक्सिस की तरफ बेंड करता है और डिक्रीजिंग के लिए कर्व एक्स एक्सिस की तरफ बेंड करता है, क्लियर। तो इसको आप समझिएगा, वैसे ही है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 केसेस मैंने इसमें लिए हैं बीटी ग्राफ में, 4 केसेस ही डीटी ग्राफ में लिए हैं, लेकिन देयर आर so many other cases also, okay. So later I will discuss in the next video, I will discuss the other cases and how we can find out the speed by distance time graph, how we can find the
डिस्टेंस बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैलकुलेट करते हैं और किस तरह हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।